السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت بہت ہے اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جھنڈے لگائیں، روشنی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں۔ آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں اس میں کس طرح جو 12 ربیع الاول کی برکت سے ایک یہودی اور ایک یہودن ایمان لائے، تو آپ لوگ یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیں۔ بہت اچھا بیان کیے ہیں اور اس کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ غیر مقلد وہابی دیوبندیوں کو ایک سبق ملے۔ کیا پتہ کہ اس کی قسمت کھل جائے، ایمان ہی لے آئے اور توبہ کر لے۔ اور یہ جو بیان کیے ہیں حضرت عتیق الزماں نے اس کو بیان کیا ہے، بہت اچھا بیان کیے ہیں اور آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پریس بیل آئیکن بٹن، سبسکرائب بھی کریں اگر آپ نئے ہیں تو۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو گیا عتیق الزماں قادری کی روایت تو بیان کر دیا، واقعہ آپ کے سامنے بولیے، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن توجہ ہے تو آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المیلاد النبویہ ایک واقعہ نقل فرماتے، بڑا شاندار واقعہ۔ اگر آدمی اسے اخلاص دل کے ساتھ سماعت کر لے یقیناً محفل میلاد کی عظمتوں کو بھی سمجھے گا، اس کی برکتوں کو بھی سمجھے گا اور کبھی محفل میلاد سے دور بھاگنا گوارا نہ کرے گا۔ بیان ہے ان کا، شیخ عبد الواحد کہتے ہیں مصر میں ایک شخص تھا حضور کا دیوانہ، سچا غلام۔ ہماری اور آپ کی طرح غلام نہیں تھا کہ ہم اور آپ کو ذرا سا کچھ بول دیتا ہے تو ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم بھی بولنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دیوانہ، سچا دیوانہ ہے۔ جب 12 ربیع الاول آتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اپنے گھر کو سجاتا، اپنے گھر کو سنوارتا، اپنے گھر میں چراغاں کرتا، اچھے اچھے پکوان پکواتا، احباب کو بلاتا، دوستوں کو بلاتا، بلانے کے بعد انہیں کھلاتا، صدقہ و خیرات کرتا۔ فقیروں اور غریبوں کی لائن اس کے دروازے پہ لگ جاتی تھی، جو آتا اپنی طاقت کے مطابق جھولی بھر بھر کے اسے دیا کرتا تھا۔ اب جو آقا کی محبت پہ پیسے خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کے پیسے میں کمی نہیں کرتا۔ ہر سال اس کا یہی معمول تھا۔ یاد رکھنا، اگر نبی کے سچے دیوانے ہو تو اپنے گھر کو صاف ستھرا کرو، اپنے گھر میں چراغاں کرو، اپنے گھر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سجاؤ۔ اور یہ کام بچوں کا نہیں، بڑا بھی اس میں دلچسپی لے، بوڑھا بھی اس میں دلچسپی لے، جوان بھی اس میں دلچسپی لے، اس لیے کہ یہ جشن کسی دنیا دار کا نہیں ہے بلکہ حبیب پروردگار کا جشن ہے۔ اس لیے ہر کوئی دلچسپی کے ساتھ اپنے گھر کو سنوارے۔ کچھ نہ کرو تو کم سے کم ایک جھنڈا لے جا کر اپنے گھر کے کھڑکی پہ لگا دو تاکہ پتہ چل جائے یہ گھر مصطفیٰ والوں کا گھر ہے، نصر والوں کا گھر نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا کرو، ایک ڈھالر لے لو اور لانے کے بعد اپنے گھر کی کھڑکی پہ لگا دو، دیکھنے سے پتہ چل جائے یہ مصطفیٰ کے دیوانے کا گھر ہے، یہ مصطفیٰ والوں کا گھر ہے، یہ نصر والوں کا گھر نہیں ہے۔ مصطفیٰ والے جشن ولادت مصطفیٰ دھوم سے منایا کرتے ہیں اور ہر دور میں مناتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر دور میں مناتے رہیں گے۔ بہت دوستو، ہر سال وہ مناتا تھا۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، اپنے گھر میں اس نے چراغاں کر رکھا تھا، احباب اکٹھا تھے، جشن کا ماحول برپا تھا۔ ایسے ہی عالم میں اسی کے پڑوس میں ایک یہودی تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کیا بات ہے، پڑوسی مسلمان کو دیکھ رہے ہوں کہ بڑا عظیم جشن اس نے برپا کر رکھا ہے، اپنے گھر میں چراغاں کر رکھا ہے، اچھے اچھے پکوان پکوا رہا ہے، غریبوں کی لائن اس کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے، احباب اور رشتہ داروں کو، دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہودی نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کے پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی ولادت کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے میلاد کا دن ہے، اور
वो मुसलमान अपने आका की आमद की खुशी में अपने घर में उसने चरागा कर रखा है, अपने घर में उसने अच्छे अच्छे पकवान पकवा कर अपने नबी के मिलाद की खुशी में उनके खाने का इंतजाम उसने किया है, गरीबों में सदका और खैरात कर रहा है। इतना उसने जब सुना है, उस यहूदन ने इतना सुना है, तो बहुत गौर से उसके जुमले को सुनिएगा। उस यहूदन ने जब इतना सुना तो उसने क्या कहा, ये मुसलमानों की बड़ी अच्छी आदत है, बहुत गौर से सुनना। उसने क्या कहा, वो मुसलमान नहीं है, वो साहिब इस्लाम नहीं है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने कलमा नहीं पढ़ा है। क्या कहती है वो, ये मुसलमानों की बड़ी अच्छी आदत है कि अपने आका की आमद की खुशी मनाते हैं, अपने पैगंबर के मिलाद का जश्न मनाते हैं, अपने आका की वलादत की खुशी मनाते हैं। इतना सिर्फ उसने कहा है, और उसके बाद रात होती है, सो गई तो उसका नसीबा अल्लाह ने बेदार कर दिया, उसके मुकद्दर को जगा दिया। उसने क्या देखा, एक नूरानी जमात चली आ रही है, एक नूरानी जमात चली आ रही है, जिसके बीच में एक अजीम शान बुजुर्ग मौजूद है, जिनका चेहरा रोशन रोशन है, जिनकी जुल्फे काली काली है, जिनका जिसमें नाज़नीन खुशबूदार है, जो मतानत के साथ चले आ रहे हैं, और उनके गिर्द दीवानों का हल्का बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे समा के गिर्द परवाने मिसाल हो रहे हो। इसने देखा, ये मंजर उसके दिल में घर कर जाता है। और ये जो जमात चली जा रही है, तो इसने क्या देखा, उसी मुसलमान पड़ोसी के घर की तरफ चली जा रही है। इसने इतना देखा, तो देखने के बाद एक साहब का दामन थाम लिया, कहा जरा ये तो बताइए, ये बुजुर्ग कौन है, आज से पहले मैंने इनको नहीं देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम इन्हें नहीं जानती हो, ये अल्लाह के हबीब है, इन्हें नहीं जानती हो, ये मुसलमानों के पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम इन्हें नहीं जानती हो, ये सैयदुल मुरसलीन है, तुम इन्हें नहीं जानती हो, ये इमामुल अंबिया है, तुम इन्हें नहीं जानती हो, ये मालिक की जन्नत है, तुम इन्हें नहीं जानती हो, ये दोनों जहान के सरदार है। कहाँ जा रहे हैं, कहा तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मुसलमान पड़ोसी ने अपने घर में इनके मिलाद की खुशी में चरागा कर रखा है, अच्छे अच्छे पकवान पकवा कर दोस्तों अहबाब को इकट्ठा किया है, बस उसके घर की बरकतों को तबाला करने के लिए ये उसी के घर में तशरीफ लेके जा रहे हैं। बताइए चला कि अगर कोई दीवाने रसूल, अगर कोई सच्चा गुलाम, अगर कोई सच्चा गुलामे रसूल अपने घर में नबी की आमद की खुशी में चरागा करता है, अपने घर को रोशन करता है, अपने घर में खुशी का एहतमाम करता है, मुस्तफा का करम फरमाते हैं, तो नबी आज भी अपने दीवाने के घर में तशरीफ ले आते हैं। सुना है आप, हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अपने घर में चरागा करो, अपने घर को रोशन करो, झंडे लगाओ, झालरें लगाओ, घर को साफ सुथरा करो, सबको खैरात करो, नबी के मिलाद की खुशी में इखलास के साथ। तो कसम खुदा की मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम्हारा इखलास कबूल हो गया, तो मुस्तफा तुम्हारे घर की बरकतों को दुबारा करने के लिए तुम्हारे घर भी कदम रंजा फरमा सकते हैं। जानते हो यहूदन ने कहा, कहाँ जा रहे हैं, कहा तुम्हारे पड़ोसी ने अपने घर में चरागा कर रखा है, बस उसके घर में बरकतों को दुबारा करने के लिए ये कदम रंजा फरमाने जा रहे हैं। उसने कहा, अगर मैं इनसे बात करूं तो क्या मेरी बातों का जवाब देंगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम है ये रहमतुल लिल आलमीन है? तुम्हें नहीं मालूम है ये सराफा रहमत है? तुम्हें नहीं मालूम है ये किसी को मायूस नहीं किया करते, अपने तो अपने बेगानों को भी मायूस नहीं करते। तुम अगर इनसे कलाम करोगी तो तुम्हारे कलाम का जवाब देंगे। चुनांचे जैसे ही यहूदन ने इतना सुना तो पलट के कहा, तो उसने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही मेरे आका ने सुना, पलट के कहा, लब्बैक, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? इसने जैसे ही इतना सुना, दिल मसरूर हो गया, इसलिए कि ऐसी आवाज इससे पहले उसने नहीं सुना था, ऐसी रसूल की आवाज, ऐसी अनोखी और निराली आवाज आज से पहले उसने नहीं सुना था। कहा कि मैं एक यहूदन हूँ, और आप मुझ जैसी यहूदन से भी कलाम फरमा रहे हैं, मेरी बातों को जवाब दे रहे हैं। मैंने आप पर कलमा नहीं पढ़ा, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, मैं आप पर अभी ईमान नहीं लाई हूँ, मगर जवाब रहमत से आप नवाज रहे हैं। तो मेरे आका का इरशाद सुनो और मिलादुल नबी की बरकतों को मुलाहिजा करो। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया था कि सुन, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि मेरे रब ने मिलादुल नबी की बरकतों से तेरे मुकद्दर में ईमान को लिख दिया है, तब तक मैंने तुझसे कलाम नहीं किया। सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन, तेरे मुसलमान पड़ोसी
ने जो मेरा गुलाम है, मेरा दीवाना है, उसने घर में मेरे मिलाद की खुशी में जश्न चरागा किया, तो तूने बेहतर कहा, इस बेहतर कहने का बदला अल्लाह तुझे दे रहा है। इसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपका अखलाक बोल रहा है, आपका किरदार करीमाना बोल रहा है, आप यकीनन अल्लाह के सच्चे रसूल है, आपकी मनमोहन सूरत बोल रही है, आपकी सूरत पर लिखी हुई सदाकत की लकीरें बोल रही है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल है, मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना दीजिए। कलमा पढ़ा, यहूदियत से तौबा किया, मुसलमान हो गई। अब उसके बाद सो रही है, ख्वाब देख रही थी ना, सो रही है और दिन ही दिन में ख्याल कर रही है, सुबह में उठूंगी, आका के मिलाद के जश्न की खुशी में, आका के मिलाद के जश्न की बरकतों के सदक़े में मुझे ईमान की दौलत मिली है, इसलिए सब में उठूंगी, मेरे पास जितना मालो असासा है सबको जमा करूंगी और उसके बाद उनको पेश कर दिरहम और दीनार को इकट्ठा करूंगी और अपने आका का जश्न मनाऊंगी, अपने घर में चरागा करूंगी, अच्छे अच्छे पकवान पकवा कर अपने मुसलमान भाइयों को बुलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, उन्हें भी खिलाऊंगी, गरीबों को बुलाऊंगी, सदका और खैरात करूंगी। ये सोच रही है, सोचते सोचते सोती रही और जब सुबह में उठी है तो काफी देर हो चुकी थी। जब उठी तो उसने क्या देखा, उसका शौहर इंतजाम में लगा हुआ है, उसने देखा उसका शौहर एहतमाम में लगा हुआ है, उसने देखा उसका शौहर घर को सजाने में लगा हुआ है, उसने देखा उसका शौहर घर में चरागा करने में लगा हुआ है, उसने देखा उसका शौहर अच्छे अच्छे पकवान पकवाने में लगा हुआ है। हैरान हुई है, हैरान होने के बाद इसने कहा मेरे शौहर क्या बात है, ये एहतमाम कैसा है, ये अच्छे अच्छे पकवान क्यों पकवाए जा रहे हैं, ये चरागा क्यों किया जा रहा है, ये घर को साफ सुथरा क्यों किया जा रहा है। तो शौहर ने जवाब दिया तेरे और मेरे इस्लाम लाने की खुशी में ये एहतमाम हो रहा है, तेरे और मेरे इस्लाम लाने की खुशी में एहतमाम हो रहा है, ये और ज्यादा मुतहय्यर रहेगी। और उसके बाद इसने कहा मैं इस्लाम लाई तुम्हें कैसे पता था, सुन रात में तूने रहमते आलम को देखा था तो रात में मैंने भी रहमते आलम को देखा था, रात में तेरा नसीबा जागा तो रात में मेरा भी नसीबा जागा, रात में तेरा मुकद्दर बेदार हुआ तो रात में मेरा भी मुकद्दर बेदार हुआ, रात में तूने रहमते आलम के हाथों पे कलमा पढ़ा तो रात में मैंने भी रहमते आलम के हाथों पे कलमा पढ़ा, रात में तू मुसलमान हुई तो रात में मैं भी मुसलमान हुआ, तू भी मुसलमान हुई मैं भी मुसलमान हुआ। मिलादुन नबी के जश्न की बरकतों के सदक़े में मुझे भी ईमान की दौलत मिली, तुझे भी ईमान की दौलत मिली। तो आ जिस मिलाद के जश्न की बरकत से हमें ईमान की दौलत मिली है, आज उसी मिलाद का जश्न हम और तुम मिलकर मनाते हैं, हम और तुम मिलकर मनाते हैं। मैं यहीं पर कहना चाहूंगा, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये ईमान की दौलत मिली क्यों, क्या अमल था उस हुजर का, उस जुमले को याद कीजिएगा और ये आज़म करके उठिएगा कि हम आका के गुलाम हैं, हम भी जश्न मिलाद मनाएंगे, हम भी अपने घर को सजाएंगे, हम भी अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे देखने वाले सारे ज़ायरीन, आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं भाई, बड़ी मेहनत लगती है, दूर दूर जाना पड़ता है, धक्के खाना पड़ता है और सेट करना पड़ता है। तो हम आप लोगों के लिए और दीन की खिदमत के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप लोग अगर शेयर कर देंगे तो ये बात दूसरे तक का भी पहुंच जाएगी और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। हम इसीलिए भाग दौड़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का ये बात पहुंचे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बाबरकत महीना है और मुझे जितनी खुशी इस महीने में होती है और किसी महीने में नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल का लोगो भी जो है वो मैं तो मिलादी हूँ करके डाल के रखा हूँ, क्योंकि मुझे इस महीने से बड़ा ही लगाव है और मैं इस महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाता हूँ और सारे के सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादे पाक पर ही बनाता हूँ, ताकि सरकार की आमद और उनका जश्न ईद मिलादुन नबी खूब धूमधाम से हो, हर कोई मनाए और मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है। तो आप फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।